ڈیلی لائٹ بلیسنگ چینل میں آپ سب کو سلام اور جے مسیح کی۔ آج ہم خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب 1 آیت سے لے کر 17 آیت تک پڑھیں گے۔ یسوع انگور کا حقیقی درخت۔ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو وہ اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو۔ جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت سا پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے۔ اور اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی۔ تم میری محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں بھی قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ میں نے یہ باتیں اس لیے تم سے کہی ہیں کہ میری خوشی تم میں ہو اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ میرا حکم یہ ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا ہے اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں اپنے باپ سے میں نے سنی وہ سب تم کو بتا دی۔ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ میں تم کو ان باتوں کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ میرے بہن بھائیوں، خدا نے کتنا پیارا میسج ہمیں دیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے۔ جب ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ایک دوسرے سے پیار کریں گے، ایک دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ جانیں گے، ایک دوسرے کے لیے درد رکھیں گے، تو خدا ہماری دعاؤں پر کان بھی لگاتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ بھی بڑھا کر رکھتا ہے، کیونکہ خدا نے کہا ہے کہ تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو تم جو کچھ مانگو گے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ خدا یسوع مسیح انگور کا حقیقی درخت ہے، میں اور آپ اس کی ڈالیاں ہیں۔ اگر تو ہم خدا کے حکموں پر نہیں چلتے، اس کے کلام پر عمل نہیں کرتے، تو جلدی شیطان ہماری زندگی میں آ کر ہماری ساری برکتیں چھین کر لے جائے گا۔ میرے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اس بات کو میں اپنی زندگی میں لیتی ہوں کہ جب میں خدا میں آگے بڑھتی گئی، خدا مجھے ہر بات میں سرفراز کرتا رہا۔ ہر الفاظ کو خدا ترتیب میں بدلتا ہے، ہر بات کو خدا اپنے روح مسا سے بھر دیتا ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا اسی گھڑی میریکلز کرتے ہیں، معجزات کرتے ہیں۔ تو میں اپنے بہن بھائیوں کو آج یہ کلام جو خداوند نے مجھے دیا ہے ان کے لیے لے کر آئی ہوں۔ تو اس کلام کے وسیلہ سے میرا ایمان ہے کہ آپ سب بھی بہت برکتیں پائیں گے۔
क्योंकि मेरे बहन भाइयों, बरकत सिर्फ खुदावन के पास है और किसी के पास नहीं है। ना रुपए पैसे में बरकत है, ना दुनिया की दौलत में, ना घर में, ना किसी और चीज़ में। अगर इत्मीनान, सुकून, तसल्ली है तो खुदावंद यीशु मसीह के पास है, क्योंकि हम खुदावंद से जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उसमें हम रहकर उसके हुक्मों को मानते हैं तो बहुत सा फल लाते हैं। और खुदा हम जैसी डालियों को और सब्ज करता जाता है, तरोताज़ा रखता है, ताकि हम भी खुदा में होकर बहुत सा फल लाएं। हम भी डालियां हैं, क्योंकि कलाम में साफ लिखा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम मेरी डालियां हो। और जो खुदा के कलाम को आगे लेकर नहीं चलता वो खुदा से दूर कर दिया जाता है, क्योंकि शैतान उसकी ज़िंदगी में आ जाता है। तो मेरे बहन भाइयों, अपनी ज़िंदगी में पूरा मौका हम खुदावन को देते हैं, उसके कलाम पर अमल करते हैं, उसके हुक्मों को अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं। क्योंकि जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है। और खुदावन फिर हमें कहते हैं कि तुम मुझ में कायम रहोगे तो जो भी बातें तुम खुदा से कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएंगी। तुम जो मांगोगे वो भी तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि आसमानी बाप हमारी फिक्र करता है, वो हमसे प्यार करता है, क्योंकि हमारा खुदावन जलाल से भरा हुआ खुदा है। और वो तो चाहता है कि हम हर वक्त खुदावन में कायम रहें और अपने खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। जैसे खुदावन ने हमसे बहुत मोहब्बत रखी है, हमें भी चाहिए हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, और ऐसी मोहब्बत रखें जिसमें लालच ना हो, दिखावा ना हो, और एक दूसरे को हम डिग्रेड ना करें, बल्कि एक दूसरे के दुख को अपना दुख जाने, एक दूसरे की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत जानकर एक दूसरे पर अपनी जान कुर्बान करें। अब जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी दुनिया के लिए अपने आप को कुर्बान किया ताकि सभी लोग निजात पाएं, सभी लोग बरकतें पाएं, क्योंकि खुदा पूरी दुनिया से प्यार करता है। और जब हम भी उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, उसकी मोहब्बत में कायम रहते हैं, तो खुदा हमें और सरफराजी अता करता है और अपनी मोहब्बत से भरता है। फिर हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे। अगर कोई दुख में है तो यकीन मानिए कि हमारे दिल में दर्द आ जाएगा कि हमें इसकी हेल्प करनी है, हर तरीके से इसको सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने वाली ज़ात तो खुदावंद की है। मेरा आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा तो अपना कुछ नहीं है। ये बदन, ये रूह, जिस्म, जान, ये घर, ये सब कुछ खुदावंद का है। ये तो उसने मुझे और आपको देकर हम सबको बहुत ज़्यादा बरकतों से भर दिया है। ये उसका बड़ा एहसान है हम सब पर कि उसने हमें अच्छी औलाद दी है, अच्छे घर दिए हैं, अच्छे बहन भाई दिए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा दिया है, क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है। जब उसने मुझे और आपको इस दुनिया में भेजा तो उसी वक्त वो हमारी खुशी में खुश था और खुश है। और खुदावंद हमें अपने करीब लेके जाना चाहता है। और खुदावंद साफ कहता है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है, तुम भी एक दूसरे से ऐसी ही मोहब्बत रखो। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह ने कोई कसूर नहीं था उनका, उन्होंने मार खाई है, वो सलीब में थी, देखने में वो लकड़ी नजर आ रही थी, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो मेरे गुनाह थे, मेरे पाप थे। मैं जब पैदा भी नहीं हुई थी तो खुदावंद को पता था, हर चीज़ का पता था, उसके वकूफ़ में थी हर चीज़, क्योंकि खुदावंद हमारे आखिर तक जानता है। इसीलिए फिर उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया, हमें उठा लिया, हमारे गुनाह अपने ऊपर लेकर हमें बोझों से आज़ाद किया, हमें खुशियाँ दी। और देखिए मेरे बहन भाइयों, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो किसी के लिए जान दे। क्या कोई किसी के लिए जान दे सकता है? मैं नहीं मानती। इंसान खुद से किसी की जान ले, उसको कत्ल कर दे, उसको मार दे या उसके साथ ज्यादती कर दे, फिर हम कहेंगे कि उन्होंने ऐसा कर दिया है। लेकिन कोई इंसान किसी के लिए जान नहीं देता। ये वाहिद मेरा और आपका खुदावंद है जो हम सबसे बहुत प्यार करता है। और जब हम उसके हुक्मों को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं तो वो मुझे और आपको अपने बेटे बेटियां बना लेता है। गुनाहों को अपनी ज़िंदगी से हमें दूर करना है और उसके हुक्मों को अपनी ज़िंदगी में लेना है। हुक्म कोई मुश्किल नहीं है,
चोरी नहीं करनी, बुरा भला नहीं किसी को कहना, अगर किसी घर में लड़ाई झगड़ा है तो वहाँ पर जाकर प्यार मोहब्बत की बातें करें, उनमें सुलह करा दें। खुदावंद ऐसी बातें मुझसे और आपसे चाहता है। तो जब खुदावंद की मर्ज़ी को हम अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं तो खुदावंद मुझे और आपको सरफराज करता है। और खुदावंद साफ साफ मुक़द्दस पाक कलाम में अपने बंदा के वसीला से हमसे बात करता है कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी है वो मैंने तुमको बता दी हैं। कैसी बड़ी बात है कि जो बातें खुदा ने हमसे कोई सीक्रेट दे के नहीं रखा, कोई बात उसने सीक्रेट हमसे नहीं रखी, हर बात को उसने खोल के रखा है। आप जो भी सवाल आपके ज़हन में आता है, आप मुक़द्दस पाक कलाम को खोलें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद मेरी मदद कर, इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए, तो आपको जवाब मिलेगा। खुदावंद खुद आपसे बातें करेगा। और साफ साफ खुदावंद मुझे और आपको कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया, और तुम्हें इसलिए मैंने मुकर्रर किया है कि लोगों को गुनाहों से बचाओ, अच्छी राह पर लोगों को लेकर आओ, ताकि बेटे बेटियां अपने माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करें, अजीज रिश्तेदार एक दूसरे से प्यार करें, कोई किसी को बोझ ना समझे। और खुदा कहता है कि ऐसा प्यार करो, हमारे प्यार में मिलावट नहीं होनी चाहिए, हमारे प्यार में कोई दुख नहीं शामिल होना चाहिए। हम जो कुछ करें हमें दिखावे के लिए नहीं करना, हमें खुदावंद के लिए करना है और एक दूसरे के लिए प्यार दिल में रखना है। जब हम प्यार करते हैं तो इससे खुदा का प्यार जाहिर होता है। तो मेरे बहन भाइयों, खुदा जब मुझे और आपको कह रहा है कि मेरे नाम से जो कुछ भी तुम आसमानी बाप से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा, मैं पूरे ईमान के साथ इस बात का इकरार करती हूँ कि पूरा दिन, ये सब बहन भाई भी जानते हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो भी जानते हैं कि जब मैं ईमान के साथ, पूरे दर्द के साथ, पूरे बोझ के साथ उनके लिए दुआ करती हूँ तो उनकी ज़िंदगी में उसी घड़ी मौज़ा होता है। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, मौज़ा मैं नहीं करती, मौज़ा मेरा और आपका खुदा करता है, क्योंकि मैं उसके पाँव की मिट्टी बन जाती हूँ और वो इस मिट्टी पर अपने पाँव रखता है और वो अपना काम करता है। आज भी वो मुझसे और आपसे बेतहाशा प्यार करता है। जब हम उसके हुक्मों को अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं, हलीम और फरोतन बन जाते हैं, तो यकीन माने कि हमारे अंदर पूरे वजूद में मोहब्बत आ जाती है। और मोहब्बत शेखी नहीं मारती, मोहब्बत दुख नहीं देती, मोहब्बत तो ऐसी खुदा की ब्लेसिंग है कि ये पूरा कलाम, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा, खुदा की मोहब्बत है। ये खुदा के दो होंठ है, जब ये खुलते हैं तो ये मुझसे और आपसे खुदा बातें करता है। और इतनी प्यारी बातें, यकीन मानिए दुनिया में कहीं इत्मीनान, सुकून, तसल्ली नहीं है जो सुकून तसल्ली खुदा यीशु मसीह के पास है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, वो किसी के पास भी नहीं है। खुदावंद कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कितनी प्यारी बातें हैं, कितना सुकून मिलता है। हम तो जब यीशु का नाम ही ले लेते हैं तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व यीशु कर देते हैं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। हमें भी अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है, हमें बुरी चीज़ों से दूर रहना है, हमें बुरे कामों को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आना, हमें अच्छे अच्छे काम करने हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी है, हमें दिखावा नहीं करना। कोई काम करके हमें शोर नहीं मचाना कि हमने फलां बहन भाई की मदद की। नहीं मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये खुदा का दिया हुआ मैं और आप दे रहे हैं। अगर इसराइल में से आप इसराइल को देखते हैं जो कि हम ही उसमें मौजूद हैं, वो मिस्र से निकले तो क्या उनके पास खाने पीने को कुछ था? क्या 40 साल तक उनके कपड़े उनके पास थे? कुछ भी नहीं था। वही उनके कपड़े खुदा के फजल से बड़े होते गए, वही सब कुछ खुदा में कायम रहा, वही सब कुछ बना रहा। जूते भी नहीं टूटे, पाँव भी नहीं स्वल हुए, रास्ते भी खूबसूरती में बदलते गए। रात को खूबसूरत चांद उनके लिए रोशनी बना देता था, दिन को उनके लिए खुदा
अपने पाक बादलों का अब्र ठहरा देता था। कैसी बात थी, आसमान से उनके लिए खाना आता था, चट्टानों में से पानी उनके लिए। खुदावन ने मूसा को कहा कि तू चट्टान पे लाठी मार, मीठा पानी आएगा। प्रेज जीसस, हालेलुया। खुदावन कितना अजीम है, खुदावन कितना प्यार करने वाला खुदा है। आज भी खुदावन मेरे और आपके साथ रहता है। शर्त यह है कि हमने किसी को दुख नहीं देना, हमें किसी को बुरा भला नहीं कहना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना। अगर मेरे और आपके वसीला से किसी की ज़रूरत पूरी होती है तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमने उनकी ज़रूरत को पूरा करना है। ये मैं और आप नहीं कर रहे, ये खुदावन ने मुझे और आपको बरकत दी। हम खुशकिस्मत हैं कि मुझे और आपको खुदा ने चुन लिया है दूसरों की मदद के लिए। हमारे पास क्या है किसी को देने के लिए? हमारे पास कुछ भी नहीं। लेकिन जब खुदावन पाक रूह यीशु मसीह मेरी और आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं तो हम हर काम कर सकते हैं एक दूसरे के लिए, हम बरकत का बाइस बन सकते हैं और कभी भी एक दूसरे को दुख हम नहीं दे सकते। ये उस वक्त तक बातें मेरी और आपकी ज़िंदगी में होती हैं जब तक मैं और आप खुदा से दूर होते हैं। उस वक्त शैतान हमारे ज़हनों को बुरी बुरी बातों की तरफ माइल करता है। जब खुदावन कह रहा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है, और जो डाली मुझ में है फल नहीं लाती तो उसे वो काट डालता है। तो हम जानबूझकर क्यों अपने आप को खुदा से जुदा करें? क्योंकि मेरे बहन भाइयों, हम खुदा से जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी सारा दिन कोशिश होती है कि मैं अपने खुदावन को हर लम्हा हर पल दे सकूं। मैं खुदावन में आगे जब बढ़ती जा रही हूँ मुझे खुशी होती है। मुझे कोई इस बात पे गरूर भी नहीं है, घुमंडी भी नहीं हूँ। मैं बहुत हलीम और फरोतन होकर रहती हूँ। ये सब जानते हैं कि मैं खुदावन के बाद अपने सब बहन भाइयों से, बेटे बेटियों से, अपने बुजुर्गों से दिल से प्यार करती हूँ। और ये खुदावन की तरफ से मुझे मिला है जो मैं आप सब के लिए मुफ्त में बांटती रहती हूँ, क्योंकि उसने मुझे मुफ्त में दिया है और मैं मुफ्त में ही सब कुछ देती हूँ, क्योंकि ये खुदावन का दिया हुआ है। एक बात मुझे, जब मैं इसको देखती हूँ कि खुदावन देना जानता है और वो लेना भी जानता है, तो ये चीज़ मुझे खौफ सदा कर देती है। मैं इसीलिए बड़ी ईमानदारी और वफादारी के साथ खिदमत करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये खिदमत जो मुझे मेरे बाप ने दी है मुझसे वो ले ले, बल्कि मैं पूरे तौर पर ईमानदारी के साथ अपने बाप को खुश करती हूँ। मैं अपने बाप से मोहब्बत रखती हूँ और दिल जान से मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने बहन भाइयों के लिए बरकत का बाइस बनूँ। एक छोटा सा वसीला हूँ जो खुदा ने मुझे आप सब के लिए बनाया है। मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से आपने बहुत सी ब्लेसिंग्स को रिसीव किया है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि पाक रूह और खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान में मौजूद हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट माइटी गॉड, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद, हम इस वक्त आपकी शुक्रगुजारी से भरे हैं। इतना खूबसूरत पाकलाम आपने दिया, आपने हमसे बातें की और आपने हमें कहा कि तुम मुझ में बने रहो। खुदावंद हमें अपने में बढ़ने का फजल अता कीजिएगा, ताकि हम सब यीशु दिल जान से आपकी हजूरी में झुककर आपके कदमों को चूमने वाले हो सकें। मैं अपने सब बहन भाइयों के लिए जो खुदा इस चैनल को सुनते हैं, देखते हैं, इस पर कलाम पर अमल करते हैं, उन सब की ज़िंदगियों में बहुत सा फल लाना यीशु जी। आज उनके घरों में कोई भी बीमारी ना ठहरे, कोई भी दुख ना आए उनके घरों में, और रोज़ी रोटी पानी में भी इतनी बरकतें देना कि कभी इन सब के मट्टी में आटे की कमी ना हो। तेल की कुपियाँ हमेशा तेल से भरी रहें। इनके घर के चारों तरफ अपने पाक फरिश्तों की बाड़ लगाना, पाक फरिश्तों को खैमजन करना, अपने लहू की बाड़ लगाना। खुदा आपका हाथ छोटा नहीं है जो बचा ना सके, आपका कान भी भारी नहीं है दुआ को सुन ना सके। और से फर्श तक यीशु अपने लहू से धो देना, हर एक चीज़ को ब्लेस्ड करना। किसी भी घर में आज खुदा कोई मेरी बहन बांझ ना रहे, औलाद की बरकत से भर दीजिएगा यीशु जी, क्योंकि ना ट्रीटमेंट, ना डॉक्टर, ना कोई और औलाद की बरकत दे सकता है।
یہ پیٹ کا پھل یسوع آپ کی طرف سے ہے، یہ میراث ہمیں آپ کی طرف سے ملی ہے۔ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے جن بہن بھائیوں کے پاس جابس نہیں ہیں انہیں اچھی سے اچھی جابس دینا، جس میں اتنی بلیسنگز ہو کہ میرے بہن بھائی جان سکیں کہ یہوہ یری ہی مہیا کرنے والا خدا ہے۔ میرے بہن بھائیوں کو بڑی برکت دینا، خاص طور پر میاں بیوی کے لیے میں برکت کی دعا کرتی ہوں۔ میاں بیوی کے رشتے کو مضبوطی میں بھر دے یسوع جی، تاکہ سبھی اس خوبصورت رشتے کو اچھے سے نبھانے والے ہو سکیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ نیکوکار بیوی خدا کی طرف سے تحفہ ہے، اور خدا نے شوہر کے لیے بھی برکت والا ہاتھ بڑھایا ہے اور اسے خدا سے تشبیہ دی ہے کہ عورت اسے خدا جان کر اسے پیار کرے۔ میں ان بیٹے بیٹیوں کے لیے دعا کرتی ہوں جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، خدا انہیں آج عقل حکمت دانائی فہم عطا کر، تاکہ وہ اپنے ماں باپ کا کہا مانے، ماں باپ کی باتوں پر عمل کریں اور ماں باپ کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں۔ کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر تاکہ تیرا زمین پر بھلا ہو، تیری عمر دراز ہو، تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے۔ یہ برکت خداوند نے دی ہے ماں باپ کی۔ خدا یسوع جی آج پوری دنیا میں امن شانتی والا ہاتھ بڑھا لیجیے گا۔ خدا ہر جگہ پر آپ ہی کے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے۔ خدا خاص طور پر ان حالاتوں کو آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں جو خدا اس دنیا کے لیے بہت مشکل اور گھٹن راہیں بنتی جا رہی ہیں، پرابلمس آتی جا رہی ہیں۔ ان گھٹن راہوں کو، ان بندنوں کو آج سب کی زندگی سے دور کر دے اور اس دنیا کا نظام اپنے ہاتھوں میں لے لے۔ خدا سب کچھ کرنے میں قادر ہیں۔ یوٹیوب چینلز کو برکت دینا خدا تاکہ ڈیلی لائٹ بلیسنگ چینل کے وسیلہ سے زیادہ روحیں بچائی جا سکے، اور روحیں صرف آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ خدا ایک ایک کو بڑی برکت دینا، جو سفر کرتے ہیں ان کے سفروں کو مبارک کرنا، ان کے رستوں کی چھان بین کرنا، ان کے راہوں کو ہموار کرنا، ان کے قدموں کی رہنمائی کرنا۔ خدا آج کا دن ہم یسوع جی آپ کے نام سے جیتنا چاہتے ہیں۔ سارا دن آپ نے محافظت نگہبانی کی، اب رات بھر بھی ہم سب کو اپنی آغوش میں سلانا، ہر طرح کی قدرتی آفات سے بچا کے رکھنا، ہر طرح کی ناگہانی موت سے بچا کے رکھنا، ہر طرح کی بیماریوں سے بچا کے رکھنا، ہارٹ اٹیک سے، اچانک موت سے بچا کے رکھنا، تمام کڈنی پین، ہر طرح کی پرابلم سے بچانا۔ خدا ہر طرح کا اندھا پن یسوع کے نام سے جاتا رہے، سوکھے جسموں کو یسوع تر و تازہ کر دے۔ یسوع جی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور ہم اس وقت آپ کے قدموں کی دھول بن کر آپ کے سامنے آئے ہیں۔ میرے سبھی خاندانوں کو بڑی برکت دینا، اور خدا آج ایک ایک جنگ کو آپ کے لہو میں چھپاتے ہیں۔ آپ کا لہو قدرت والا ہے، آپ کا لہو حشمت سے بھرا لہو ہے، آپ پیار سے بھرے خداوند ہیں۔ خدا آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سبھی کے ساتھ ہونا، جو ہاسپٹلز میں ہیں ان کو بھی شفا دینا، جو قید خانوں میں ہیں، چھوٹے کیسز میں بیچارے پھنسائے گئے ہیں، انہیں بھی آزاد کرنا۔ خدا جو لوگ کافی سالوں سے، میرے بہن بھائی، میرے بزرگ بستر پر ہیں، بیماری کے بستر پر ہیں، آج ان کے بستروں کو بھی شفا میں بدل دے۔ آج ان کے کچن میں بھی برکت والا ہاتھ بڑھا لے، کیونکہ جہاں پر آپ کا ہاتھ بڑھ جاتا ہے وہاں پر کسی بھی چیز کی کمی نہیں آپ آنے دیتے۔ سبھی کے ہاتھوں کو بلیس کر دے، سبھی کی زندگیوں کو بلیس کر دے، اور سبھی کی زندگیوں میں آپ کا فضل اور آپ کا رحم بنا رہے۔ خدا ہر دن، ہر لمحہ، ہر پل آپ کی حضوری میں دیتے ہیں۔ ہم سب کی مدد کرنا، رہنمائی کرنا، سارا جلال، ساری بزرگی خداوند آپ کے یسوع نام کو دیتے ہوئے آپ ہی کے نام سے یہ سب کچھ مانگ کر پا لیتے ہیں۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔